Good morning. In today's editorial, we are going to talk about one of the burning topics of India. And the title of this editorial is Memories. Before we come to this title, Memories, first of all, we must try to understand what this topic is all about. As we all know that we celebrate our Independence Day on 15th August, as India got freedom on 15th August 1947. And this day is a red letter day in the history of India. But before one day of 15th August 1947, the day is remarkable for partition. As we all know that on 14th of August 1947, India was divided into two parts. One is called Pakistan and the second one is Hindustan, that is India. We celebrate our day with great mirth and enthusiasm, but we forget the pain and trauma and the suffering of the people that had to undergo during that very day. Many of the young ladies of our country were raped and kidnapped and killed. Many of the people were killed brutally, and that pain can never be forgotten. In order to commemorate that particular day, that particular time, the Prime Minister of our country has announced 14th of August as Partition Horrors Remembrance Day. Yes, this is right that we celebrate our independence. This is a matter of great happiness for us, but we cannot forget the pain and the suffering of the people that they have undergone through. Because if you do so, it will be injustice to the thousands of people who have lost their life for no reason. That's why, being an Indian, this is our responsibility to commemorate their sacrifices, and we will have to go through this topic. So you must remember this, that day will never come to your life when you do something for your country if you don't go through this partition day, if you don't commemorate the day, if you don't remember the day. So, being an Indian, we must take an oath that we shall celebrate our victory, we celebrate our freedom, but we shall never forget their sacrifices. That is something that we are going to discuss about in this very topic. So, you will have to listen to me carefully. I will be flexible in speaking both the languages, either Hindi or English. So, this will be English. So, try to understand what is there in the topic today. First thing, as the topic is memories, means yadein. यादें, डू अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द यादें ऑफ पार्टीशन की यादें की बात हो रही है. तो टॉपिक का टाइटल ही है ऑन रिमेंबरिंग पार्टीशन, यानी पार्टीशन को हम लोग रिमेंबर कर रहे हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन दैट इज रिटन ओवर देयर. रिमेंबरिंग पार्टीशन बाय इन्वॉल्विंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वुड हैव बीन मोर एप्ट. रिमेंबरिंग मीन्स याद करना, कोमोमेरेट करना. पार्टीशन मतलब होता है बंटवारा, स्प्लिट. बाय इन्वॉल्विंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का भी एक बार बंटवारा हो चुका है. एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक हो गया पश्चिमी पाकिस्तान. तो जो पूर्वी पाकिस्तान है, 1971 में जब इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री थी, उस समय इन लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था. बांग्लादेश के जो लोग अभी हैं, जो इसको पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, तो बांग्लादेश की इंटरफेरेंस के बाद इंदिरा गांधी की इंटरफेरेंस के बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया, जो कि एक पूर्वी पाकिस्तान का भाग था. जब पार्टीशन हुई थी तो इस शर्त पे पार्टीशन हुई थी कि जो धर्म के आधार पे, यानी जहां मुस्लिम बहुल लोग हैं, ज़्यादा हैं लोग वहां पे, उसको पाकिस्तान के साथ कर दिया गया था. तो एक तरफ इधर देखो जम्मू एंड कश्मीर के साथ का जो सीमा है वही पाकिस्तान के साथ था, और दूसरा इसका पूर्वी पाकिस्तान है जो सिक्किम के आसपास था, वो भी किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ ही. लेकिन 1971 में फिर से युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद भारत इन्वॉल्व हुआ. भारत इन्वॉल्वमेंट के कारण बांग्लादेश एक अलग देश बना. ठीक है. तो कहा जा रहा है कि ये सार्थक, एप्ट होगा, मतलब परिपूर्ण होगा, पार्टीशन को याद करना. किसके साथ? इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर इन्वॉल्व करके अगर याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन उन लोगों का भी है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अनाउंसमेंट फॉलोड बाय अ गजट नोटिफिकेशन.
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक अनाउंसमेंट, घोषणा हुई थी, फॉलोड बाय अ गज़ेट। गज़ेट का मतलब होता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही प्रधानमंत्री की एक अनाउंसमेंट हुई थी। टू मार्क मतलब होता है इंडिकेट, अगस्त 14 14 अगस्त को एज पार्टीशन हॉरस रिमेम्बरेंस डे, यानी 14 अगस्त को उन्होंने कहा दिया कि पार्टीशन हॉरस रिमेम्बरेंस डे के तौर पे। 74 ईयर्स लेटर हैज़ रिसीव्ड मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस। और 74 साल के बाद ऐसा अनाउंसमेंट हुआ जिसका एक मिलता जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला। कुछ लोगों को अच्छा लगा तो कुछ लोगों को ख़राब लगा। विद अबाउट 2 मिलियन किल्ड, देखो क्या आंकड़ा है, इन द मोस्ट ब्रूटल वेज, लगभग 2 मिलियन जो लोग थे मारे गए थे बहुत ही क्रूर तरीके से। एंड एस्टिमेटेड 1 लाख वीमेन किडनैप्ड एंड रेप्ड, लगभग 1 लाख औरतों को किडनैप किया गया था और उनके साथ रेप किया गया था। एंड मोर देन 15 मिलियन मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड, कम से कम 15 मिलियन ऐसे मर्द थे, पुरुष थे, बच्चे थे जो कि अपना स्थान यानी डिस्प्लेस्ड हो गए थे, जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ से दूसरे जगह चले गए थे। आपने गद्दर मूवी देखी होगी, उसका एक समझ लो कि एक पिक्चर जो है वो उस समय का डिस्प्ले करता है, जो आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा झलक मिली है आपको। पार्टीशन द ब्रिटिश राज पार्टिंग शॉट टू इंडिया। पार्टीशन जो हुआ था ना, वो किसकी सोच थी? ब्रिटिश राज की सोच थी। वो जानबूझ करके हमारे देश को टुकड़ों में बांट करके चला गया, जानबूझ करके लोगों में दंगा फैला करके चला गया। ये सोची समझी ब्रिटिश राज की एक साजिश के तहत हुई थी। ये जो हुई ब्रिटिश के द्वारा, लास्ट एक पार्टिंग शॉट था, यानी जाते जाते ऐसा करके हो गया। लेफ्ट एंड इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है वैसा निशान, मार्क, ऐसा मार्क जिसको आप मिटा नहीं सकते हैं, जो लंबे समय तक रहता है, एवर लास्टिंग कह सकते हो। इन हार्ट्स एंड मेमोरीज अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, ये कुछ ऐसा दाग लगा कर चला गया, ऐसा मार्क करके चला गया कि जो हमारे दिल में, हमारे यादों में, या फिर जो सब कॉन्टिनेंट हैं, सब कॉन्टिनेंट, अगर इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया के सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो इसमें कई देश आ सकते हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हो गए, जैसे हो गया इंडिया है, पाकिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका, मालदीव्स हो गए, नेपाल हो गए। इन सब केवल भारत के लिए नहीं, जो भी ये बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, ये सब के लिए है। फॉर इंडिया इन पार्टिकुलर, खासकर भारत के लिए, दैट लॉस्ट इट्स टेरिटरी एंड द पीपल, भारत के लिए खास ये पेनफुल है क्योंकि इसने अपने क्षेत्र को खोया है, साथ ही अपने लोगों को भी खोया है। टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, जैसा कि बताया कि वेस्ट में और ईस्ट में हमारा जो बंटवारा हुआ। द डिसीजन वाज अ पेनफुल क्लीविंग, एक क्लीविंग का मतलब ही होता है सेपरेट, बंटवारा। तो ये जो डिसीजन था वो बहुत ही दर्द भरा बंटवारा था। दैट मार्ड, मार्ड का मतलब होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करना। मच ऑफ द जॉय फेल्ट इन गेनिंग इंडिपेंडेंस, यानी जो एक्सप्लॉइट कर दिया हमारी खुशी को, जो हम लोगों ने फेल किया था इंडिपेंडेंस प्राप्त करके, यानी जो ये स्प्लिट हुआ, ये पेनफुल क्लीविंग हुआ, वो हमारे जो खुशी है जो इंडिपेंडेंस के बाद मिली थी उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया था। द वायलेंस दैट वाज अनलीस्ड बाय द डिसीजन पिटेड इंडियन अगेंस्ट इंडियंस, ये जो वायलेंस था, हिंसा, वाज अनलीस्ड मतलब भड़का दिया गया था, अनकंट्रोल हो गया था। अनलीज का मतलब टू बी अनकंट्रोल्ड, एक डिसीजन के कारण हो गया था जो कि भारतीयों को भारतीयों के सामने खड़ा करके रख दिया था, यानी एक भारतीयों को एक भारतीय के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया था। हिंदूज एंड सिख्स अगेंस्ट मुस्लिम्स, हिंदू सिख एक तरफ और दूसरे तरफ मुस्लिम्स आ गए थे। विद द वर्स्ट ऑफ द हॉरर्स सीन इन पंजाब एंड बंगाल, सबसे खतरनाक जो हॉरर देखने को मिला था वो पंजाब और बंगाल में मिला था। स्टेट्स दैट बट partitioned in the most mindless and thoughtless display of colonial insensitivity, ये जो बंटवारा था देश का वो बहुत ही माइंडलेस तरीके से, यानी बिना कोई दिमाग लगाए हुए थॉटलेस तरीके से कर दिया गया था, जो दर्शाता है कि कितना इनसेंसिटिव थे कॉलोनियल, मतलब कॉलोनियल का मतलब होता है ब्रिटिश राज,
कि कॉलोनी से मतलब है, यानी जो ब्रिटिश थे वो बिना सोचे समझे ऐसा डिसीजन लेकर पार्टीशन का हम लोगों को बर्बाद करके चले गए। आगे बढ़ते हैं। दीज स्टोरीज हैव रिमेन्ड इन पब्लिक मेमोरी, ये जो कहानियाँ हैं वो लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी है। एज इंडिया कॉन्शसली चूज टू सेट असाइड इट्स पेन एंड ग्रेट पाकिस्तान ऑन इट्स वर्थ, क्योंकि इंडिया जानबूझ करके कॉन्शसली ये सिलेक्ट करता है कि जो दर्द है उसको साइड कर दो और पाकिस्तान को ग्रेट करता है उसके बर्थ पे, एंड अटेम्प्टेड टू कार्व आउट अ डिस्टिंक्ट सेकुलर आइडेंटिटी एज इट साउट टू डेवलप इटसेल्फ, और ये कोशिश किया टू कार्व आउट मतलब होता है डेवलप करना, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, सेकुलर आइडेंटिटी। वहीं पाकिस्तान सब कुछ ये दर्द को भुलाकर पाकिस्तान को उसके जन्मदिन पे बधाई देता है, और कोशिश किया इसने कि वो सारे दर्द को भूल करके भारत को एक अलग सेकुलर आइडेंटिटी वाला राज्य या देश के तौर पे डेवलप करना, और जिसके लिए ये वचनबद्ध भी था, चाहता भी था कि हमारा देश जो है वो एक सेकुलर कंट्री बने। आगे देखते हैं। द स्कार्स मतलब होता है यहाँ पे निशान, जो दाग लगी हुई है, वर नॉट फॉरगेटन, लेकिन वो जो दाग लगी हुई है उसको नहीं भूला गया है, बट बोर्न विथ फॉर्टिट्यूड एंड अ डिज़ायर टू मूव ऑन फ्रॉम देम, लेकिन बोर्न विथ फॉर्टिट्यूड साहस के साथ, ताकत के साथ, पावर के साथ आगे जाना बढ़ना, और डिज़ायर टू मूव ऑन, और जो पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़ना, दैट इज़ कॉल्ड मूव ऑन फ्रॉम देम। जख्मों को नहीं भूला, निशानों को नहीं भूला, लेकिन हमारे अंदर पावर है जन्म से ही, जब से शुरुआत हुई भारत की तब से सबको भूल करके आगे निकलने की, पुरानी बातों को भूल करके आगे निकलने की। एलोंग द वे उस समय की बात है, द टू नेशन थियरी बेस्ड ऑन रिलीजन अलोन दैट पाकिस्तान्स फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना फाउट फॉर सो बिटरली डिसइंटीग्रेटेड विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। वह व्यक्ति, जैसा कि आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ था पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनके ज़िद के कारण ही भारत का दो टुकड़ा हो गया, एक सिंगल आदमी के कारण। तो उन्हीं का था टू नेशन थियोरी बेस्ड ऑन रिलीजन अलोन दैट पाकिस्तान्स फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना फाउट फॉर, जिसके लिए अकेला जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना वो फाउट किए सो बिटरली, बहुत ही बुरे तरीके से। ये भी डिसइंटीग्रेटेड हो गए। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब होता है अलग कह लो, ठीक है, विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971, और वहाँ से भी बंटवारा हो गया 1971 में, और जो एक बांग्लादेश देश बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति के तौर पे शपथ लिए थे। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी के प्रयासों के कारण ही बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में आया, क्योंकि इनके इंटरफेरेंस के कारण ही जो बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान पहले था, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उससे भारत की जो सबसे प्रसिद्ध और रिनाउंड नेत्री थी उस समय की इंदिरा गांधी, उन्हीं के प्रयासों से बांग्लादेश एक अलग देश बना। Now we have the next part, that is other developments have also helped heal the wounds of partition। और दूसरे कई डेवलपमेंट्स भी हमारे देश में हुए जो कि पार्टीशन का जो दंश था, दर्द था, जो जख्म था, उसको भरने में, हील करने में मदद किया। नॉट द लिस्ट इंडियाज सक्सेसेस ओवर द पास्ट 3 क्वार्टर्स, पिछले 3 क्वार्टर्स की बात करें तो भारत की जो सक्सेसेस हैं ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग ग्रोइंग इकोनॉमी, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इसकी जो ताकत है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो इसकी ताकत है, एंड एज अ रिस्पेक्टेड वॉइस ऑन द ग्लोबल स्टेज, और वैश्विक स्तर पर जो इसकी आवाज़ है उसकी वैल्यू है ना, यानी वैश्विक स्तर पे हमारी जो बातें हैं उसकी भी एक्सेप्टेंस है। ये हमारी तरक्की है और ये हमारा
नया भारत भी है। लेकिन वहीं पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो पार्टीशन चाहा, सब कुछ वो चाहा, उसके मुताबिक भी हुआ, लेकिन फिर भी वो कहाँ है और हमारा देश अभी कहाँ है। देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट अ नेशन कैन नॉट नो इटसेल्फ विदाउट नोइंग इट्स पास्ट। इस सवाल से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई भी देश अपने बारे में नहीं जान सकता है तब तक जब तक वो अपने पास्ट के बारे में नहीं जानेगा। एंड दैट द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। और ये कि जो हॉरर था, जो डर था, खतरा, जो आतंकित माहौल था पार्टीशन का, उसके बारे में तो हम लोग को कम से कम ज़रूर जानना चाहिए। आर्चीव्ड मतलब होता है उसको मेमोरी में रखना चाहिए। मॉर्न मतलब शोक व्यक्त करना चाहिए। एंड कोमेमोरेटेड, कोमेमोरेट का मतलब होता है कि जब अ पर्टिकुलर डे को याद करते हुए उसको एक सेरेमनी के तौर पे सेलिब्रेट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड कोमेमोरेशन। तो जो पुरानी यादें हैं, पास्ट है, जिसमें आपको दुख हुआ था, उसको याद रखना ज़रूरी है। उसको आप अपने मेमोरी में सेव करके रखिए। मॉड उसके ऊपर शोक व्यक्त कीजिए और उसको एक सेरेमनी के तौर पे याद कीजिए। द कंसर्न ओवर द नेमिंग ऑफ द डे एट दिस पॉइंट however is that it forces the nation to look back on his traumatic time rather than looking ahead। जो चिंता थी इस तरह के डे को नाम रखने का, वो ये थी इस पॉइंट पे कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको फोर्स करना कि टू थिंक ऑफ बैक और लुक बैक, पीछे मुड़ करके देखने के लिए, ऑन दिस ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक का मतलब होता है पेनफुल टाइम। आगे बढ़ने की बजाय थोड़ा पीछे का भी कुछ याद कर लीजिए। ये नहीं कि सब कुछ भूल करके आगे निकलते जाएं। पुरानी बातों को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी बातें हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ प्रेरणा भी देती है कि आगे आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इसी के पर्पज से कि सारे लोग उस कुर्बानी को भूल ना जाएं, उनके दर्द को भूल ना जाएं, उनकी यादों को भूल ना जाएं, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पीछे पास्ट में होकर के जाइए और उसको याद कीजिए। गिवन दैट द ट्रॉमा वाज फेल्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन 3 कंट्रीज। ये बात को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए कि जो ट्रॉमा था, ये जो कष्ट थी, दर्द था, परेशानी थी, केवल भारत में इसको फील नहीं किया गया था, भारत में इसे महसूस नहीं किया गया था, बट इन 3 कंट्रीज, 3 देशों में किया गया था। और ये 3 देश आप जानते हैं कौन कौन है। An attempt to mark the day across the subcontinent might have been more inclusive। तो इसमें सारे देशों को इंक्लूड करना, इंक्लूसिव का मतलब शामिल कर लेना, जो सब कॉन्टिनेंट हैं, जो हमारे आसपास के जो देश हैं, उनको भी इसमें शामिल करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता, ये ज़्यादा अच्छा होता। It is necessary too to remember not just the violence of 1947 but also the colonial hand that brought partition। ये ज़रूरी है कि ये याद किया जाए कि 1947 में क्या वायलेंस हुआ था, हिंसा जो हुई थी। उसके साथ ही जो ब्रिटिशर्स ने, जो कॉलोनियल थे, ब्रिटिशर्स के हैंड के द्वारा जो हमारे लिए पार्टीशन लेकर के आया गया, उसको भी याद करने का दिन है। यानी ब्रिटिश जो कॉलोनी थी हमारे यहाँ, उसके द्वारा जो पार्टीशन का डिसीजन लिया गया और जो दर्द हम लोगों ने 1947 में सहा, वो दोनों को याद करने का ये तरीका है। और होल्ड द ब्रिटिश एम्पायर टू अकाउंट, और ब्रिटिश एम्पायर जो राज था उसको क्या जिम्मेवार ठहराने का भी दिन है। एंड एडुकेट सक्सेसिव जनरेशंस, और आने वाले जनरेशन्स हैं उनको पढ़ाने का भी एक जरिया है। ऑन द पेरिल्स ऑफ इम्पेरियलिज्म, पेरिल्स मतलब होता है खतरा, ऑफ इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कि जब कोई देश दूसरे देश के जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, उसको अपने में मिलाने की कोशिश करता है, उसी को बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। भारत के इतिहास को अगर हम लोग पढ़ें तो भारत की सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि हम लोग पहले एक अखंड भारत के तौर पे नहीं थे। हम लोग अलग अलग राज्य और रजवाड़ा के अंतर्गत थे, अलग अलग विरासत के लोगों के साथ थे, प्रोविंसेस थे, ऐसा कह लो प्रिंसली स्टेट्स थे जिसमें हम लोग बटे हुए थे।
और एक हम लोग सार्थक प्रयास, एकजुट प्रयास किसी के अगेंस्ट में नहीं करते थे। इसी की वजह थी कि हम लोग हमेशा गुलाम रहे। तो वही चीज़ अगर हिस्ट्री को देखेंगे, समझेंगे, तो वो गलती फिर से हम लोग नहीं करेंगे। इसी पर्पस से इस डे को सेलिब्रेट करने का फैसला लिया गया कि जो हमारे आने वाले जनरेशन है वो समझे कि क्या होता है खतरा जब आप गुलाम होते हो, किसी के अंडर में रहते हो। जैसे हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, तब ना वो अपने मन मुताबिक हमारा बंटवारा करके चला गया। अगर हम लोग नहीं होते तो हम लोग को फैसला लेने का अधिकार होता, और जैसा अभी स्थिति है वैसी नौबत नहीं आती जो उस समय हो गई। तो आने वाले जनरेशन को भी प्रेरणा मिलेगा, इससे समझ में आएगा कि नहीं कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। और आगे है आर्बिट्ररी मैप। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाने तरीके से, मैप मेकिंग एंड शोइंग रिलीजियस डिवाइड्स इन ऑर्डर टू रूल। जो मनमाने तरीके से आप, मैप मेकिंग का मतलब होता है कि आप बोलते हैं कि ये एरिया मेरा है, वो एरिया तेरा है। शोइंग रिलीजियस डिवाइड्स, शोइंग तो जानते हो कि डेवलपिंग, रिलीजियस डिवाइड्स यानी धर्म के नाम पे जो बंटवारा कर रहे हो इन ऑर्डर टू रूल करने के लिए। यानी क्या होता था कि जब पहले के जो लोग आते थे धर्म के नाम पे हम लोगों के बीच में लड़ाई लगवा देते थे, आपस में लड़ते थे हम लोग, और उसका फ़ायदा उठा करके वो रूल करना, हमारे देश पे शासन करना शुरू करते थे। द प्राइम मिनिस्टर्स रीजनिंग, प्राइम मिनिस्टर की जो रीजनिंग है, लॉजिक है, दैट द नेशन मस्ट बी रिमेंबर्ड ऑफ द नीड टू रिमूव द पोजिशन ऑफ सोशल डिविजन्स। भारत को जरूर याद करना चाहिए, क्या जो देश है उसको याद करना चाहिए, द नीड टू रिमूव द पोजिशन ऑफ सोशल डिविजन्स। यानी जो सामाजिक डिविजन्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है जो हमारे देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उसको रिमूव करने की सोच के तहत ऐसा किया गया। जो डिसहार्मनी है, डिसहार्मनी मतलब नॉट हार्मनी, यानी जो सद्भावना नहीं है, एंड फर्दर स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ वननेस, और आगे हम लोग को वननेस, हमारा जो एकता है, वननेस का मतलब यहाँ पे एकता, यूनिटी की जो स्पिरिट है, भावना है, उसको ताकतवर बनाने के लिहाज से ऐसा किया गया है। सोशल हार्मनी एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा किया गया है। यानी सोशली हम लोग अपने यूनाइटेड रहें, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें, ह्यूमन जो है मानव जाति का विकास हो, ये सुनिश्चित करने के लिहाज से आपको इतिहास में झांकने की ज़रूरत है और उसको याद करने की ज़रूरत है। ये जो फैसला है इज़ वेलकम, स्वागत करने लायक है, बट दिस इज़ एन एफर्ट टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे। लेकिन देशभक्ति की जो भावना है हमारे भारतीयों के बीच में, चाहे तो 26 जनवरी को आती है या फिर 15 अगस्त को आती है, तो ये जो है हमेशा के लिए होना चाहिए, न कि एक दिन के लिए। ऐसे आप देखते हैं कि कई जगहों पे मॉब लिंचिंग होती है, कई जगहों पे दंगे होते रहते हैं। तो एक केवल जो प्रैक्टिस है ना, याद करना एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए याद रखना है कि जब आपस में हम लोग लड़ेंगे, आपस में फूट होगी, तो दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। ये अगर हमेशा से याद रखेंगे तो आप कभी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। तो एक केवल एक दिन के लिए नहीं, आपको पूरे साल याद रखना है, और हमेशा के लिए एक दूसरे के प्रति जो रिलीजन है उसके प्रति रिस्पेक्ट की भावना रखनी है। तभी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं और हम लोग इस पर अपना गर्व महसूस कर पाएंगे। और नहीं तो जैसी स्थिति अब बन रही है, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि फिर से हम लोग टुकड़ों में बटेंगे, और टुकड़ों में बटने का दर्द तो आप 1947 के इतिहास को अगर पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आज की कहानी या फिर कह लो एडिटोरियल इतना ही, ये प्रेरक भी है और हम लोग को इस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।